To her transformative workshops and personalized coaching, she offers proven EFT based strategies that unlock the full potential of a fulfilling partnerships. Her work continues to inspire thousands to break through relation barriers and embrace new chapter of connection, joy, and shared purpose. Thank you. Thank you, Akshara. Thank you. So now I would like to introduce our guest speaker, that is Dr. Guruchan Singh Ghatoda. So, Doctor, through his transformative work with the Abundance Accelerator Hub, has pioneered an integrative approach that blends medical science with spirituality and life coaching. His holistic philosophy emphasizes the interconnectedness of physical, mental, emotional, and spiritual well being, asserting that true healing and personal growth emerge from aligning with inner peace and principles of abundance. Central to Dr. Ghatoda's work is the 6G Abundance Accelerator model, that is goals, growth, gallop, gratitude, greatness, and give back. This model forms the foundation of his programs, guiding individuals to unlock their potential and create meaningful changes across all areas of life, including health, relationships, career, and self fulfillment. By addressing the full spectrum of the human experience, he empowers participants to transform adversity into growth and live with greater purpose. Beyond his medical and coaching achievements, Dr. Ghatoda's work is widely respected for its social impact. His programs reach diverse audiences from corporate leaders to individuals navigating personal crisis, earning him global recognition as a thought leader in mental wellness and personal development. Dr. Ghatoda's journey inspires a new paradigm in medicines where holistic healing complements clinical care. Through the Abundance Accelerator Hub, he continues to champion a vision of accessible, empowered living rooted in abundance and compassion. So, thank you. And now I would like to Thank you. hand over the session to Dr. Anjali so that she can enlighten us about the topic, that is Thank you. overcoming challenges. Thank you, Akshara, and welcome. Thank you. Thank you so much, and welcome to this today's podcast. As Dr. Guru Charan is with us, and he is like a chief, we would say, as a guest speaker. So, welcome to my this podcast today, and welcome to all of you, those who are here in this community and the community of Relationship Hub, and where the freedom, there is a what would I say? That is a financial freedom in relationship. So today we are going to have discussion on this, and this would be the bilinguistic session, not completely in Hindi or not completely it is going to be the English. So it is a kind of a mixed language we are going to use here. And so welcome you all. And today we all are connected here with every kind of a population over here. Like a youth are here, and those who are youngsters, teenagers are here, the parents are here, the like elderly people are here, and the older people are here. So, in considering all, we are going to have a discussion on like a financial freedom and relationship. So कहते हैं ना कि पैसा पैसा पैसा, और आज के समय पे पैसे की बहुत आवश्यकता है। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसा है तो रिश्ता है, पैसा नहीं है तो रिश्ता नहीं है। कभी कभी पैसा इतना ओवर एम्पावर कर जाता है कि पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास चिंताओं का बोझ के आगे हम दबते चले जाते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी और पैनिक अटैक का शिकार हो जाते हैं। और जब रिश्तों की बात करते हैं तो कहते हैं प्यार से कुछ नहीं होता। प्यार आप करते हो लेकिन अगर पैसा नहीं देते हो तो फिर ऐसा कैसे प्यार। तो प्यार भी तभी लेना और देना होता है जब पैसा उसके साथ जुड़ा होता है। तो इसी की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर गुरुचरण सिंह को आपको वेलकम करती हूँ और आपके द्वारा थैंक शुरुआत करती हूँ। जरूर से जरूर नमस्कार, गुड इवनिंग। और जी, गुड इवनिंग। आप थैंक यू। जी, तो सबसे पहले हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप क्या बताना चाहेंगे जो आपका जो फील्ड है एबेंडेंस,
फाइन एबंडेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जी, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। यस, आप मुझे देख सुन पा रहे हैं एवरीवन? ओके। सो सो सबसे पहले आप सभी का थैंक्स। शॉर्ट नोटिस पे यू आर हियर, दैट शोज आप अभी देखिए कहीं पर भी आप हो सकते थे इस टाइम। This time you might be in any party, you might be anywhere somewhere else, yes, but you chose to be here। आपने चूज किया कि आपको यहाँ रहना है। दैट शोज के हम सभी कुछ नया सीखना चाहते हैं, और इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कुछ सिखाने आया हूँ। जस्ट लाइक इट्स जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, व्हाट द वर्क आई एम डूइंग, आई एम शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस विद यू। सो way back when I was struggling with my physics chemistry, the story started then, and 10 12 in year 90s, 90, 91, 92. So that was the time when I was struggling with those subjects because of just stuck mindset, scarcity mindset कि मैं नहीं कर सकता। फिजिक्स केमिस्ट्री आते से मुझे टेंशन होने लगता था कि कैसे होगा। सो जस्ट वन थॉट चेंज होल ट्रेजेक्ट्री। दैट वाज अगर लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता। So this change in mindset was the whole U-turn in my story. So changing everything, changing everything from like scarcity, from fear कि मैं नहीं कर सकता, वहां से मैंने सारा चेंज किया, and I was able to crack the exam, and I was able to get into the medical entrance. Yes. So because of that mindset shift, I am working for the people who are still stuck because of their mindset। यहाँ ही है सब गड़बड़ी, और यहाँ ही हमारे पास समाधान है, यहाँ ही सॉल्यूशन है। So if we work here in our mindset, if we go in that abundant zone, yes, I am connected to the universe, and in universe is abundance. He, the supreme, is abundance. So everything around is in abundance, and we are in scarcity। और आप सोचिए, देखिए, कोई भी जो भी आगे बढ़ने के लिए सोचता है, वो अगर कमी कमजोरी देखकर पीछे रह जाता है, वो स्टक हो जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। मैं नहीं कर सकता हूं, अगर आप ये सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। This is a scarcity mindset. Your mind is set at that particular place. And when abundance comes, when you get into that zone of abundance, कि yes, जब सब लोग कर सकते हैं, if a single person can do on this planet Earth, I can also do it। मैं भी कर सकता हूँ। Yes, that is the thought, and with that thought I started my journey, and I worked with Brahma Kumaris for last 25 years, and right now I am helping people, particularly working professionals, similar to me, particularly doctors and medical professionals, because they are already under stress, and because of that stress they are not able to work on themselves। So when it comes to abundance, people think like it's a money matter, not only money matter, it's about health, it's about wealth, it's about career, it's about relationship, all the aspects is being affected by this abundance। Abundance means bharpurta, means you are in fullest of health, wealth, career, relationship। आप हर चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। आप, इट्स नॉट अबाउट नंबर। आप हो सकता है आपके पास कम है, बट यू आर इन अबंडेंट स्टेट। किसी के पास ज्यादा है, बट हो सकता है वो अबंडेंट स्टेट में ना हो। तो अबंडेंट स्टेट इज अ टोटली डिफरेंट फेनोमेनन। जो दुनिया सोचती है वो नहीं है। इट्स नॉट अ नंबर गेम, इट्स अबाउट हियर, इट्स अबाउट हैविंग इनफ, जितना आप एंजॉय कर सकते हैं, एंड वट एवर यू हैव, यू एक्नॉलेज दैट। माई डेफिनेशन ऑफ अबंडेंस इज what you have, you are acknowledging, and you are saying thanks to the supreme कि मुझे इतना सब कुछ मिला। दैट इज अबंडेंस। अगर आप रो रहे हैं दिन रात, आपके पास बहुत कुछ है, बट स्टिल यू आर क्राइंग, क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, यू आर नॉट इन अबंडेंस जोन। यस। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम हेल्पिंग पीपल टू चेंज देयर माइंडसेट। दिस इज अबाउट अबंडेंस। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बोला कि एबेंडेंस एबेंडेंस मीन्स इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी बट इफ यू आर क्राइंग फॉर मनी और इफ यू क्राइंग फॉर समथिंग दैट it means that you are not in abundance. So Yeah, right now in a modern era, every wants to be in abundance, and it's very hard to receive everything in an abundance. So where it is lies like abundance and the satisfaction
abundance with the scarcity, abundance with the financial freedom, abundance in the co-dependence with the relationship. How like you are going to like discriminate among all aspects? I already told you, मैंने यही पहले बताया कि it's a matter of having a abundant mindset which will help you to attract abundance in all areas of life. Means if you are in abundant state here, you are able to experience the health abundance also, you are able to experience then a relationship abundance also, and you will certainly attract so much of money in your life because you are abundant here. Means you are working 100%. अभी मैं आपको बताता हूँ, if suppose you are going for a job 9 to 5 job, yes, and you are stuck here, आप scarcity zone में हैं, तो आप अपने आप को upgrade नहीं कर पाएंगे, you will not be able to work fullest. But if you are in an abundant zone, what you will do, you certainly experience, you certainly use certain new things, you will upgrade yourself, that will help you to get promotion in your particular career. Yes, so it's about here. आप रिलेशनशिप की बात करें, अब रिलेशनशिप में अगर इफ आई एम स्टक हियर, इफ आई एम इन स्कार्सिटी जोन, I will not be able to experience whatever relationship I have. If I am in abundant zone, I am not expecting anything from any relationship, I am in a giving zone. When you are in that zone, abundant zone, you will certainly experience everything in your health, wealth, career, relationship, because you are in a giving zone, not in a demanding zone. And this present time, maximum problems are because we are expecting things from the others. Yes, this is the thing. तो या सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने बताया। और डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन हम आपसे ये इस तरह से रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। जी मैनी पीपल लाइक मेल एंड फीमेल एवरीवन आर वर्किंग, बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक होम मेकर्स एंड दोज हु आर नॉट अर्निंग, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? हाउ दे कैन बी लाइक दे कैन गेट अ फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंस, और दे कैन बी इंडिपेंडेंट, एंड व्हाट द थिंग यू आर गोइंग टू शेयर फ्रॉम सुनिए, योर एक्सपर्टीज? yes, so it's very important. देखिए, I run a program called Spiritually Inspired Holistic Wellness Program. Yes, I started with financial wellness program, but I have now included everything into it, holistic wellness program. So number one thing is spiritually you have to upgrade yourself, come into abundant zone here. Now start working on your finances. Because why finances? Because 95%, more than 95% of the things are being sorted if you are financially strong. Yes. अब देख क्या होता है, स्पिरिचुअल पीपल से कि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा हाथों का मैल है, पैसा ऐसा है वैसा है, they impart that kind of thought. That is okay, that is okay, but आपके पास अगर if you are in a scarcity zone, if you are not financially sound, you will not be able to experience anything in your life. Apparently looking a different kind of statement, but yes, it is true. Yes, it is true. I have experienced everything. जब जब नहीं था, I was not financially well, people used to make fun of us, yes, just because कि उनको ये लगता था कि इनके पास कुछ भी नहीं है, they are not good at that. But now when I am doing well, everyone is respecting. It's not about I am demanding respect, it's about you are able to handle so many things if you are financially stable. Yes. और मैं आपको एक और बात और बता दूं here, हर साल हर साल हम दीपावली पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं. यस, वाई माँ लक्ष्मी की, वाई वी कॉल हर मदर, माँ. माँ मीन्स जो पालना करने वाली है. बट हम हमारे पास ओल्ड माइंडसेट क्या है कि पैसा खराब है, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो खराब काम करोगे, ऐसा वैसा, ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिव old belief system we are carrying, and because of that I'm not working on earning money. Earning money is not bad, I have to work on it. There are so many things which at present time जिस पर हम काम कर सकते हैं, we are able to earn and we are able to experience abundance in all areas of life. And one is spirituality and another is finances. अगर ये दो पिलर आपके strong है ना, I tell you very important thing,
यस, Yes, yes, Dr. Sir. एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं, बट आपको मैं बता रहा हूँ, it's so many things are being sorted by this particular thing. अगर आप spiritually strong है, here abundant zone में, or you are Means positively. financially, yes, or you are in abundant zone financially, you can sort out so many things, not everything, I'll not say everything, you can sort out so many things if you are in that particular zone. Yes, you are able to take care of your health. अब आप मान लीजिए पैसा आपके पास कम है, आप उसको हेल्थ को भी ठीक नहीं रख पाएंगे, क्यों? देयर सो मेनी थिंग, यू आर नॉट एबल टू ईट, यू आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज बिकॉज यू हैव टू वर्क more to earn more. Yes, if you are not financially strong, now comes to relationship, nobody will respect you, not even your maybe at present time, most of the divorces are because of this particular problem also, because uh, uh, that they are not able to handle their finances properly. One thing is mismanagement, another thing is old belief system. So these all are going simultaneously. And similar thing is with career. I'm not happy with career because I'm not getting the remuneration which I expect, because I'm not upgrading myself. So all things are stuck because I'm in scarcity zone, and another, I'm not able to handle my finances properly. और जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो हमें ये दोनों को कार्य करना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ में भी जो भी रिलेशनशिप है, everyone has to work on achieving financial freedom to have so many things in their life, abundance in their life. This is what we are focusing. यस डॉक्टर साहब, मेरे को आपसे बात करने के बाद मुझे कुछ एग्जांपल्स याद आते हैं, जी जी प्लीज। मेरे सामने आते हैं। जैसे कि मैं दो या तीन एग्जांपल्स में पहले एक एग्जांपल रखूंगी एक बच्चे का। जी और वो बच्चा मेरे पास आया और वो पैनिक अटैक, एंजाइटी और पैनिक अटैक का शिकार था। और जब जी उसकी मैंने हिस्ट्री पता की और सारा सब कुछ क्लिनिकल इंटरव्यू लेने के बाद देन आई फाइंड आउट कि प्रॉब्लम बच्चे में इस तरह की कि वो बहुत बंदिश में रखा जाता था कि आप पैसा इतना लो तो इतना ही खर्च करना, हिसाब देना, और कहीं जाना भी नहीं है, जो भी फादर लेकर आए हैं उसी में आपको रखना है। फादर वॉज पोस्टेड समवेयर एल्स, फादर जब आ रहे हैं संडेज को द चाइल्ड वॉज एक्सपेक्टिंग कि फादर मुझे कहीं ले जाएंगे, मूवी दिखाने ले जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, एंड दिस वॉज नॉट देयर। सो दे केम बिकॉज ऑफ द एंजाइटी और पैनिक अटैक। बाद में पता चला कि ये सिचुएशन है, तो आई आस्क्ड द फादर कि आप कभी कभी मंथ में, नॉट मंथ्स में, 2-3 मंथ्स में एटलीस्ट यू टेक योर चिल्ड्रन टू योर होटल एंड रेस्टोरेंट फॉर डिनर एंड समथिंग। तो वो लेकर गए, तो बट द सेकेंड टाइम द चाइल्ड कंप्लेन कि फादर ले तो गए लेकिन कहते हैं कि 2,000 खर्चा करा दिया, और इतना अच्छा खाना तो 2,000 में घर पे तो कितना पनीर खा सकते थे, आइसक्रीम खा सकते थे, पता नहीं क्या क्या जी। खा सकते थे। सो यस कहते हैं यस। कि पूरा मूड, मम्मी का भी मूड खराब हो गया और मेरा, हम लोग का भी मूड खराब हो गया, दीदी का भी खराब हो गया। इट्स बेटर नॉट टू टेक अस टू द रेस्टोरेंट, वहीं खिला देते, बट ये लाइक क्रिटिसाइजिंग ऑल द टाइम टिल द लाइक दे वर ऑन द कार। तो कहते हैं मैम ये एक बार नहीं, ये कई कई बार ऐसा पापा के साथ करते हैं, बट ही इज अर्निंग अ हैंडसम सैलरी, ही इज अ गजेटेड ऑफिसर, इज अ प्रोफेसर समवेयर, एंड दिस इज वॉट लाइक हिज माइंड सेट। सो क्या कर सकते हैं ऐसे कि एक ऐसी सिचुएशन में, क्या कहा जा सकता है? द सेम थिंग लाइक बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट, देयर पर्सनालिटी पैटर्न, or their parenting, they have been adopted in such a family, or they have seen the poor like a financial crisis in their life, and because of they are not like they became miser, they don't want to spend money leisurely or in a small like a things जो कि उनको लगता है this is a waste of money. So, what do you like? Would you say कि क्या इसमें क्या कर सकते I हैं tell you, ऐसी it's a सिचुएशन very में? very common problem everyone is facing, because we are not having good relationship with money. Getting my point? It's about having bad relationship with money. Relationship here also applies. Getting my point? If I don't have a good relationship with money, जैसे आपने कहा कि वो कंप्लेन करते रहे इतना खर्च हो गया, हम हमेशा करते हैं, वी ऑल्सो डू इट। सो इसके लिए प्रैक्टिस हमें क्या करनी पड़ेगी? ऑलवेज थैंक्स द मनी विच इज कमिंग टू यू। ये प्रैक्टिस करें everyone here. I tell you, you will achieve next level game. It's very very
small thing and very big impact creating thing. What is that? Always say thanks whatever money comes to us. Is it, if it may be cash or maybe in the bank, say thanks money. Always say thank you money, whatever money comes to you. And whatever money goes from you, bless that money. अभी हम ये नहीं कहेंगे हाय मेरा पैसा चला गया, नो, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन एनर्जी. I tell you, I am spending my time, I am spending my energy to earn money. So that means it's an energy. It's an energy game. If I am in a low energy state, I will not attract more money. अभी मैं आपको यहाँ उदाहरण देता हूँ. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर एफ्लुएंट, उनके पास बहुत पैसा है. क्यों? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? Because everyone there is in higher frequency zone, they are able to attract more money. Getting my point? I am not able to attract because I am in low scarcity zone, I am in a low frequency zone. I have to elevate my frequency. आपने देखा होगा लक्ष्मी जी की एनर्जी फ्लो हो रही है, yes, उनके हाथ से मनी इज फ्लोइंग. तो दैट फ्लो हैज टू बी देयर. तो ब्लेस द मनी. जो पैसा जा रहा है उसको ये मत कहो कि मेरा पैसा चला गया, कोई बात नहीं. ब्लेस द मनी कि जहां जा रहा है ये मेरा धन, उसका कल्याण हो रहा है. You will feel the total difference in your life. Yes, and say thanks to money. जो पैसा आ रहा है, you will certainly change the whole equation. You will change your relationship with money. You will feel कि money is a, you feel कि जैसे माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं ना, मैंने कहा वहां से शुरू किया. माँ लक्ष्मी इज मदर, मनी इज मदर. मैं उससे पालना हो रही है मेरी. जैसे मदर बच्चों की पालना करती है ना, तो मनी इज जैसे कि वो मेरी पालना कर रहा है. फील लाइक दैट. यू विल सर्टनली Nurturing. चेंज Money is एवरी. nurturing. नर्चरिंग अस. टोटल रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा एंड यू विल एक्सपीरियंस सो मेनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ. चेंज दिस इक्वेशन, चेंज दिस इक्वेशन. डोंट बी टाइट फिस्टेड. अभी 2 रुपए के पीछे हम लड़ाई करते हैं वहां पे सब्जी वाले से. अरे 2 रुपए ज्यादा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और 2 रुपए अगर आप बचा लोगे तो उसका क्या होगा? यस, हमें वहां नहीं बचाते हम. अगर मान लीजिए मॉल में चले जाएंगे, वहां जितना टैग लगा है वहां पर टैग लगा है, आप 1 रुपए कम नहीं कर पाएंगे उससे. कर पाएंगे? आप बताइए. और शान से लेके आएंगे, मैं फला उससे लेके आए. अरे कोई बात नहीं, 2 रुपए अगर एक्स्ट्रा दे दिए, से थैंक्स. से थैंक्स, मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, कोई बात नहीं. ऑलवेज मेक इट अ हैबिट. सो क्या होगा? इफ यू आर इन दैट जोन ऑफ अबंडेंस, ऐसा नहीं कि आप बांटते रहें, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू शुड बी नॉट टाइट फिस्टेड विद मनी. तो वैसा ही आपके पास होने वाला है. वही वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करने वाले. दिस वे यू कैन चेंज द इक्वेशन. यस. डॉक्टर साहब, दिस इज ऑडियंस को मुझे लगता है ये बहुत नई बात महसूस हुई होगी. दिस इज अ वेरी न्यू थिंग यू हैव टोल्ड अस नाउ, कि पैसे को धन्यवाद देना है जो जो पैसा जा रहा है. आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आज तक जाते हुए पैसे को धन्यवाद दिया होगा. कभी नहीं. मैं भी नहीं देता था. इट्स व्हाट आई हैव लर्न, व्हाट आई एम डूइंग. अगर मान लीजिए आप ऑटो वाले को पैसे दे रहे हैं, आप सब्जी वाले को दे रहे हैं, थैंक यू. अब बोलो तो सही आप, यू विल सर्टनली अट्रैक्ट सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. आई बेट इट. मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ना हो आप मेरे को बोल देना, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. मैं ये किताबी बात नहीं बता रहा हूँ. व्हाट आई एम यूजिंग इट, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू. इट्स एज सिंपल एज दैट. So ये this कोई is like, बुकिश नॉलेज नहीं है. यस. is a like a river. It's a flowing. So it is going and coming back. So यस. when you will spend, एक मेरे पास स्लोगन हुआ करता था, when you will spend, you will receive money. So there are the few people in our society, not a few, there are the many men's or maybe the women, they are in the society. वो पैसा अगर देते हैं अपनी फैमिली में तो एक एक चीज का हिसाब पूछते हैं. और उनके स्पाउस को ऐसा लगता है कि आई एम बेगर, और मैं एक बैगर हूँ, और मैं एक ओनर से, कंपनी के मालिक से, घर के मालिक से पैसा मांग रहा हूँ. सो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सर व्हाट लाइक, बिकॉज ये विल पावर को लो करता है, कमजोर करता है, सेल्फ स्टीम को डाउन करता है, और अपने आप को, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिगाड़ता है. और जी. एक पैसा, सिर्फ सारे टैलेंट्स हैं, सारे स्किल्स हैं, बट ओनली द मनी, फॉर द मनी, फॉर द सेक ऑफ मनी, एंड द पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन समवन. सो
कितना उसका डिसीजन पावर कितना कमजोर हो जाता है, एंड हाउ द मेंटल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड। इसके बारे में जरूर ये क्वेश्चन हमारा ही है, लेकिन आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि व्हाट कैन डू, बिकॉज आप आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं कि एक के पास अगर थोड़ा पैसा भी है और कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, और कैसे होम मेकर होकर एक स्टूडेंट भी, हमारे इस ग्रुप में स्टूडेंट्स भी हैं, एक स्टूडेंट भी होकर के उस पॉकेट मनी को इन्वेस्ट करके कैसे वो अर्न कर सकता है और अपने जिंदगी को बेहतर एक लाइफ स्टाइल दे सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप उसमें कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे, फोकस करना चाहेंगे? देखिए, देखिए, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, इट कैन बी एनी प्रॉब्लम, मे बी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, एनी प्रॉब्लम occurs because of mismanagement. If I'm not able to take care of my health, I'm not managing it properly, I'll get health issues. It is as simple as that. If I'm not practicing wealth, I will not be wealthy. If I'm not practicing health, I will not be healthy. If I'm not practicing good practices in relationship, my relationship will not be good. It is as simple as that. It's about mismanagement. So similarly, whosoever you are, maybe आप students हैं, चाहे आप housewife हैं, चाहे आप working professional हैं, whosoever you are, I tell you, जब जागो तब सवेरा है. Make it a habit. It's about habit. It's about relationship. So make it a habit. अगर मेरे पास अगर 100 rupees हैं, if I am not able to manage that 100 rupees, how will I be able to manage 1 lakh rupees? Getting my point? It is as simple as that. Simple equation है. हम क्या सोचते हैं जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा फिर मैं अच्छे से मैनेज करूंगा. नो, कड़की में आटा गीला नहीं करना, मुझे कड़की में और ज्यादा ध्यान रखना है. जब मेरे पास कम पैसा है तब मुझे और ज्यादा कॉशियस रहना है. कैसे रहना है? जस्ट मेक इट अ हैबिट कि 100 rupees है, उसको डिवाइड कर लो 3 पार्ट्स में. एज सिंपल एज दैट. सिंपल इक्वेशन. वैसे अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे देख लीजिएगा, टी हार्वेकर 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम. टी हार्वेकर 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम. यस, टी हार्वेकर. He is a very international renowned person. He is teaching how to manage the money. Yes, he is a founder of Millionaire Mind Intensive. He is a very internationally renowned program. तो आप वो देख सकते हैं. बट मैं सिंपल इक्वेशन बता रहा हूं. अगर आप मनी को मैनेज करना चाहते हैं, डिवाइड इट इन 3 पार्ट, 50, 25, 25. इट इज एज सिंपल एज. सिंपल इक्वेशन. 50 है, उसको आप इसी इक्वेशन, इसी परसेंटेज में डिवाइड कर लीजिए. 50, 25. गेटिंग माई पॉइंट? 50% शुड गो फॉर आपके जो खर्चे हैं, डे टू डे खर्चे, एवरीडे, आटा दाल चावल. यस. एंड 25% फॉर इन्वेस्टमेंट. 25% फॉर इन्वेस्टमेंट. 25% आपके और जो है, मे बी एजुकेशन और जो चीजें हैं, वो 25% उसके लिए, आपके एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन और सारी चीजें. इस सिंपल, अगर मैं हैबिट डाल लू ना, 100 rupees आए मेरे को, इसको ऐसे डिवाइड करके ऐसे यूज करना है, इसमें गड़बड़ ही नहीं करनी, कितना भी कुछ गड़बड़. अगर मान लीजिए मैं 10% भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, अगर मेरे को पता होता ना, मेरे को आज आज आपको पता लग रहा है, अगर मुझे पता लगता ना आज से पहले, जब से पैसा मेरे पास आना शुरू हुआ, जब, ये समझ लीजिए, ये तो तब से शुरुआत हो जानी चाहिए जब से हम बच्चे को वो देना शुरू करते हैं, क्या? रीड। पॉकेट मनी. पॉकेट। यस. यस. अगर मान लीजिए मैं कर रहा हूँ तो बच्चा मुझे देख के करेगा. 6 जार बना दीजिए, उस पर परसेंटेज आप देख लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च करिएगा कैसे परसेंटेज, उसमें बहुत अच्छे से दिया है. कौन सा मेरे रिक्रिएशन में जाना चाहिए, कितना परसेंटेज बच्चों की एजुकेशन, कितना परसेंटेज मेरी एजुकेशन, इट्स ऑल. कितना परसेंट चैरिटी जाना चाहिए. चैरिटी शुड ऑल्सो बी देयर. मे बी मेक इट अ हैबिट. अगर रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए चैरिटी एवरी मंथ. जैसे मुझे टैक्स देना है, टैक्सेस का भी मेरे को देखना है. यस, 10%, 5% जो भी टैक्सेस जाते हैं, एवरीथिंग दिस इज अबाउट मैनेजमेंट. तो अगर मैं ये शुरू कर दूं ना, एक चीज और मैं आपको बता दूं, टेक्निक बता दूं, अभी मैंने लेके नहीं आया, आई एम सॉरी. मैं गिफ्ट देना शुरू कर दिया है क्योंकि मैंने मेंटोर से सीखा. उन्होंने गिफ्ट देना शुरू किया, पिगी बैंक. हैव यू सीन दैट पिगी बैंक? बच्चों के पास यस। होता है गुल्लक. यस डॉक्टर। एवरी डे मेक इट अ हैबिट कि मुझे उसमें पिगी बैंक में डालना है. आप डालेंगे, बच्चे डालेंगे,
और हर महीने जो कलेक्शन हो रहा है, मे बी डोनेट करो, मे बी इन्वेस्ट करो। हर महीने आप, मैं आपको बता सकता हूँ, कम से कम में भी हम 500, 1000, 2000, 3000, जितना भी हम, यस, यस, इट्स हैबिट आपको मैं बता रहा हूँ। यही आदतें। अब जैसे आप कह रहे थे कि हर चीज का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन रखना बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। यू शुड नो कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। यस, बट ऐसा नहीं कि मैंने जैसे डिवाइड किया ना, कि 50% खर्चा होना तो वो खर्चे में जा रहा है। मेरे को 25% इन्वेस्ट करना है, मीन्स करना है, उसके बारे में सोचना नहीं। तो वो जैसे मैं आदत बना लूंगा तो वैसा इजीली होने लगेगा। बट कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। एक चीज और जो बच के रही है आज के समय पर, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट फाइनेंशियल फ्रीडम, दिस इज ऑलवेज सेव योरसेल्फ फ्रॉम इमोशनल स्पेंडिंग। इमोशनल स्पेंडिंग, यस यस यस। बिकॉज कंपनीज आपको कहेंगी ठंडा माना कोका कोला। अब और कुछ नहीं चाहिए हमें, कोका कोला ही चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए, किसने कहा है? वो 10 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपए का पानी आपको 10, 20, 50 रुपए में दे रहा है। अमाउंट ऑफ मनी ही इज अर्निंग। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? नींबू पानी पीजिए ना घर पे, क्या समस्या है? गेटिंग माई पॉइंट? सो मेनी थिंग्स। अभी सेल चल रही है, अभी अमेजोन की सेल चल रही है। डोंट गो इनटू इट अनटिल अनलेस यू रिक्वायर इट। आपको चाहिए तो अवश्य लीजिए। लोन लेकर चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। इट्स अ होल बिग सब्जेक्ट, पर्सनल फाइनेंस। बट इट्स ऑल अबाउट स्मॉल स्मॉल हैबिट, छोटी छोटी आदतें जो आप अपने आप में परिवर्तन कर लेंगे ना, यू विल क्रिएट बिग डिफरेंस। बिग डिफरेंस। अभी आप देखो, नोटबंदी हुए थे, कितने नोट निकले माताओं बहनों के पास घरों में। सबने छुपा छुपा के रखे थे। अगर उसको इन्वेस्ट करे होते थे, कोई टेंशन नहीं थी, मनी ग्रो होता था। और और उनको टेंशन भी नहीं होती थी। अब नोट रखे, नोट किसी काम में नहीं आए। अब मैं एक उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पर। एक बंदे को, दो दो फ्रेंड्स थे, दोनों फ्रेंड्स को एक लमसम अमाउंट उनको मिला, मे बी लाख रुपीज। लाख रुपीज दोनों को मिला। एक बंदे ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जमीन में गाड़ देते हैं, तो दोनों ने ऐसे ही सोचा। बट एक बंदे ने क्या किया, पैसे जमीन में रख दिए। दूसरे बंदे ने क्या किया, उस पैसे का गोल्ड परचेस करके जमीन में रख दिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब जो क्या हुआ, अब मान लीजिए 5 साल बाद दोनों को जरूरत पड़ी, तो जिसने पैसा डाला था, पैसा लाख रुपए, लाख रुपए। यस। अब क्या होता है, जो गोल्ड वाले ने निकाला, गोल्ड का पैसा बढ़ गया, उसके लाख के 2 लाख हो गए 5 साल बाद। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वॉट आई हैव टू फोकस ऑन। पर हमें क्या सिखाया, एफडी करो, ये करो, वो करो, जिसमें कोई फायदा नहीं। अभी नए नए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, कहाँ हमें सेव करना है, कहाँ है। पहले तो आदत ये है कि मैं हैबिट्स चेंज करूं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टिंग। दैट इज द नेक्स्ट लेवल गेम, कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। इट्स होल टुगेदर डिफरेंट साइंस, और बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। If you really are serious, no worries, you can Dr. Anjali get through, you will get that guidance also, no worries. It's not a big game. Yes. But तो it's about ठीक। doing it, implementing the things. This is the thing. तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया, मुझे एक फॉर्मूला याद आता है कि प्लस माइनस इक्वल टू प्लस, Yes. प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस। मीन्स जो करना है वो अगर नहीं कर रहे हैं तो माइनस हो Yes. जाएगा, जो करना नहीं है वो कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, जो करना चाहिए और कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट लाइक आपकी ने जो अभी बताया कि हमें जो करना चाहिए, यानी कि अगर आप पैसा जितना है उसमें अगर आप इमोशनल स्पेंडिंग ना करके, जैसे कि इमोशनल ईटिंग होता है, हम खाते जाते Yes. खाते जाते खाते जाते उसके बाद रिजेंटमेंट मिलता है कि हम कितने ओबीज हो रहे हैं, कितने हम मोटे होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ईटिंग, बिकॉज ऑफ लाइक एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। द सेम थिंग हम खर्च करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, एंड आफ्टर कितना खर्च करने के बाद यू फील लाइक हमें नहीं खर्च करना चाहिए था, ये मैंने Yes. बेवजह खर्च कर दिया। रिजेंटमेंट होता है, गिल्ट होता है, और साथ साथ में मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है। तो मैनेज करना किस प्रकार से करना है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है और आपसे बेहतर कौन बता सकता है। ये बात आपने बहुत ही बेहतरीन बताई। अब हम ये एक थोड़ा सा और एक इशू लाना चाहेंगे कि पैसा खुशी देता है, पैसा हेल्थ देता है, पैसा रिलेशनशिप देता है, सब कुछ देता है, लेकिन क्या वास्तविक रूप से पैसा खुशी देता है? मनी फाइनेंस खुशी देता है?
एक एग्जाम्पल मैं रखना चाहूंगी कि एक पर्सन थे, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पैसा कमाने में लगा दी। लैंड मतलब बहुत सारा लैंड्स ले ली, बहुत सारी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स में अपना नाम रोशन कर लिया, समाज में नाम रोशन कर लिया। लेकिन छोटी जी छोटी बातों में कुछ एक इंसिडेंट हुआ, और वाइफ ने उनसे 50 लाख रुपए एक बर्थडे में कहा कि मुझे अपने बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मुझे 50 लाख रुपए, मुझे 1 करोड़ समथिंग का चाहिए। उन्होंने कहा मैं 1 करोड़ नहीं दे पाऊंगा, मैं 50 लाख दूंगा, बिकॉज मेरा पैसा जिसमें लगना चाहिए था वो लग चुका है, और आना चाहिए था वो नहीं आया है। तो मैं इतना ही अमाउंट दे पाऊंगा, बिकॉज मैंने बताया कि काफी एम्पायर खड़ा किया था। वाइफ नाराज होकर के, और वाइफ घर से चली गई। शी वेंट टू द समझ आता था। एंड दिस वॉज द लाइक मे बी सेकेंड और थर्ड बर्थडे ऑफ द चाइल्ड। अब वो करीब 3-4 मंथ से नहीं आई, एंड शी वॉज सेइंग कि तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझे, एंड यू लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड योर सिचुएशन rather than understanding my own emotions and feeling, and because of my child, मेरा सन था और मुझे अपने बेटे के लिए करना था। हस्बैंड was saying ये आपका भी बेटा था, मेरा भी बेटा था, बट सिचुएशन was not like that। अब मेरे मेरे पास हस्बैंड ने बोला कि मैम मेरे पास सब कुछ है, और एवरी ईयर 2-3 कंट्रीज को, कंट्रीज मतलब नॉट ओनली वन कंट्री, 2-3 कंट्रीज आई यूज टू विजिट विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, एवरीथिंग आई प्रोवाइड। लेकिन आज मेरी वाइफ 3 मंथ से नहीं है, और शी इज नॉट लाइक गिविंग एनी मैसेज कॉल, एंड बच्चे को भी साथ ले गई है। एंड नाउ आई फील कि मेरे कमाने से क्या फायदा, जिसके लिए मैंने कमाया इतना जोड़ा, तो कमाने से क्या फायदा, तो खुशी, अब मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती। तो अब आप क्या बताना चाहेंगे कि पैसा और खुशी, पैसा और रिश्ता। जी। अनटोल्ड स्टोरी। यस यस। तो खैर आप बड़ी सारी बातें एक साथ करना चाह रहे हैं, बट आई टेल यू, देखिए, जब उनका सब ठीक चल रहा था, दे वर हैप्पी विद दैट, इजंट इट? कोई यस। घूम रहे थे, जा रहे थे। सो इट इज नॉट द मनी ओनली विच व्हाट क्रिएट्स प्रॉब्लम, यस, इट्स द माइंडसेट। मैंने पहले ही कहा ना, हमारी शुरुआत, अगर मान लीजिए उसको पता होता चल भाई लाख, 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख, बस उसका भी बेटा है, मेरा भी बेटा है, that is not the money problem, that is something else was there, yes, that is one thing। दिस ईगो। another, yes, मैं बता रहा हूँ, I have seen people post retirement applying for divorce, can you imagine that? That is also happening because of ego। अब both of them are like head of the department, they were used to, but now अब घर में कौन सुनेगा, दोनों रिटायर है, उनके पास वो भी नहीं है सुनने वाले, अब एक दूसरे की किसकी सुने, तो दे अप्लाइड फॉर divorce, that is a different aspect। but I tell you, it's not the money which is creating problem, it's all the mindset, number one thing। number two is, आई कांट से कि हैप्पीनेस हमारे को पैसे से आ रही है, बट पैसा ना होने से तकलीफ जरूर होगी, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। yes? मान लीजिए मेरे को फीस जमा करनी है, या कुछ भी कार्य करना है, इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई विल सर्टनली बी नॉट बी हैप्पी। आप ये स्वीकार करेंगे, यस? सो in this way it is mandatory, if you are financially free, you will certainly be, the chances of being happy will be more। I'll not saying कि money is equivalent to happiness, happiness is totally different game, yes, but the chances of getting unhappiness, या sadness, this will reduce to many fold, yes। अभी मैंने किसी से ये भी सुना था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये कहने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? उस लेवल पर आप पहुंच जाओ, फिर ये सब बातें करो, बिकॉज आई टेल यू, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर चीज, इवन इवन कुछ भी करना है। अभी अगर आपने माँ लक्ष्मी की आरती सुनी होगी ना, नहीं सुनी तो सुनना, जिसने भी नहीं सुनी, इज सच अ वंडरफुल थिंग, वंडरफुल डिपिक्शन, कि कह रहे हैं तुम बिन यज्ञ ना होता। माँ लक्ष्मी से क्या कहा जा रहा है कि आपके बिना यज्ञ भी नहीं हो सकता, अगर धन नहीं है तो कैसे होगा? अब इतना बड़े बड़े अनुष्ठान होते, कैसे होंगे अनुष्ठान? अगर धन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। गेटिंग? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए आई हैव टू हैव मनी विथ मी। देन मैंने दो बातें पहले की थी, वन इज अबंडेंट माइंडसेट, अनदर इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, दिस विल सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। अगर वो अबंडेंट माइंडसेट दोनों हस्बैंड वाइफ में होता है, वाइफ कहती चलो कोई बात नहीं 50 लाख तो दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, और इसका भी बेटा है, तो देयर वाज समथिंग एल्स जो शायद पहले कुछ और रिलेशनशिप में इशू रहा होगा, मे बी इस वजह से वो अभी दिखाई दिया। ऐसा भी होता है कि बीमारी कुछ और रही थी बट किसी और रूप में बाहर आई, उसने बहाना बनाया कि 50 लाख मिले मेरे को इतने नहीं मिले, बट ऐसा क्या था 1 करोड़ में करना, आई डोंट नो, मे बी। कुछ ब्लेम करना। Yes, there's so many other things. So money is not equivalent to happiness, but yes, if you have money, you are able to sort out so many things in the life. अगर मान लीजिए वो 1 करोड़ दे देता तो प्रॉब्लम नहीं होती थी ना। अगर मान लीजिए उसके पास 1 करोड़ होता था तो वो सॉर्ट आउट हो जाता था, प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि उसके पास 1 करोड़ नहीं था, 50 लाख थे। अगर 1 करोड़ होता था तो काम खत्म हो जाता था। सो सो इट्स अ डीप थिंग, बट yes, it is important. I tell you, I have seen those days also. मैं आपको बता रहा हूँ, आई यूज टू ट्रेवल इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बट स्टिल मुझे कोई समस्या नहीं है शेयर करने में। आई यूज टू ट्रेवल विदाउट टिकट जस्ट टू सेव मनी। यस, दैट इज इलीगल, बट क्या था, आई हैव टू स्टडी व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस इन रायपुर। आई हैव टू ट्रैवल जस्ट टू सेव मनी। वंस एक बार ऐसा हुआ था कि फीस बढ़ने वाली थी एमबीबीएस की, तब हमने स्ट्राइक की थी कि हमें ऐसा फीस बोला, अभी ऐसे फीस बढ़ा रहे, ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम 700 पर ईयर टू 12,000 पर ईयर, कितना हाइक हो रहा था। तो स्ट्राइक करने से हमारा हमारा लास्ट बैच था। उस समय ऐसा हो गया था कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मुझे लग रहा था कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो दैट वाज द कंडीशन। देयर आर सो मेनी थिंग्स which is being sorted out. यस, इससे सब कुछ नहीं होता, बट बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, हम डिनाई नहीं कर सकते इसको। यस। सही कहा, बहुत सब कुछ तो नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है, क्योंकि बहुत से लोग जान भी दे देते हैं पैसे के लॉस यस, में, अभी फाइनेंशियल लॉस में। बहुत सारे लोग सुसाइड, फैमिली की फैमिली सुसाइड कर रही है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे देयर लोन्स। पहले प्रॉब्लम क्या है कि लोन क्यों ले रहे हैं? मैं आपको यहाँ जितने भी लोग हैं पहले मैं बता रहा हूँ, अगर इफ यू डोंट रिक्वायर, जितना हो सके अवॉइड लोन्स एंड अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। अभी रोज आपको फोन आते होंगे, मेरे पास रोज फोन आता है कोई ना कोई ऑल्टरनेट डे, ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री, डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप, दैट इज अ ट्रैप, because credit card is the highest यस। interest. Yes, यस। 40%, 40%, that kind of interest they charge if you don't pay on time. Yes, so don't get into it. अगर आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल इसमें मत जाइए, कम चीजें यूज कीजिए। डोंट गेट इनटू लोन ट्रैप, डोंट गेट इनटू ईएमआई ट्रैप, इसकी ईएमआई उसकी ईएमआई, अगर इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ एक फाइनेंशियल कोच भी हैं, तो मैं आज की बढ़ती हुई जो टीनेजर्स की समस्या है, उस समस्या के बारे में थोड़ा फोकस करना चाहेंगे। ये टीनेजर एडोलसेंस की एज है, वो कम एज में ही बहुत बड़े रिच बनना चाहते हैं, और जिसके कारण वो गेमिंग में आ जाते हैं। और वो गेमिंग एक प्रकार से ऐसे गेम होता है, ऑनलाइन होता है, कि जिसमें आप गेम खेलेंगे, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। और पैसे शुरू शुरू में मिलते हैं, लेकिन बाद में पूरी तरीके से वो डेब्ट में आते जाते हैं, और उसकी आदत इतनी बन जाती है कि बड़े होने पर भी वो आदत छूट नहीं पाती है, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप में डिवोर्स तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये किस प्रकार का क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल? तो और साथ ही साथ हम और जो हमारे ऑडियंस है, जो श्रोतागण हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि वो अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से फायदा उठा सकते हैं, और बहुत सारी स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे कि अनम्यूट होकर के वीडियो में आकर के आप सामने आए तो बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जी का लेना और देना, और देखिए दो स्पेशलिस्ट एक सामने हैं, तो आपको एनर्जी मिलने वाली भी है और आप हमें देने वाले भी हैं। तो इसका भी आप लुत्फ उठाएं, और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जब तक आप सोचिए क्वेश्चंस को, तब तक मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट को ना केवल इतने ही लोग सुनने वाले हैं, बल्कि आगे और बहुत से लोग सुनने वाले हैं। और हम चाहते हैं इस छोटे से इस आज के ही कड़ी में हम
कुछ ऐसा मसाला डाल सके ताकि आगे आने वाले जो हमारे पॉडकास्ट हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं कि जो उनकी माएँ बहुत परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, क्या करें, बेटी के लिए परेशान है, पत्नी पति के लिए परेशान है। उस परेशानियों का छुटकारा दिलाने के लिए कैसे पैसा ज्यादा कमाया जा सके कहाँ से पैसा लाया जा सके, पैसा पैसा पैसा। देखिए, सब अच्छी बात है। अपेरेंटली बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे कि ये स्कीम है, वो स्कीम है, गेट रिच स्कीम, बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स में लोग सब बताएंगे। और यंग जनरेशन के लिए प्रॉब्लम समस्या क्या है कि उनके पास जोश बहुत होता है, बट होश कम होता है, एक्सपीरियंस कम होता है, और इस वजह से दे गेट इनटू सो मच ऑफ ट्रैप। बट आई टेल यू, I have met so much of young person, young people, and young guys. They are working tremendously, tremendously. तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आप कोई भी काम गेट रिच स्कीम में बिल्कुल मत जाइए। बहुत सारी और स्कीम्स हैं जिसमें आप अच्छे से पैसा अच्छा अर्न कर सकते हैं। इवन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एज, इट्स मैटर ऑफ हाउ मच यू नो अबाउट इट। सो सो what you have to do is don't get into that schemes, but get into upgrading yourself. मैं आपको हमेशा कहता हूँ, यंग जनरेशन जितने भी लोग मिलते हैं, डोंट बाय अ आईफोन। आई हैव सीन 90% ऑफ द आईफोन इन द इंडिया आर बॉट ऑन ईएमआई बिकॉज ये इजी हो गया ना, इजी हो गया। बट डोंट बाय दैट। आई डोंट हैव आईफोन, yes, because I don't, yes, I do have gadgets, but I don't promote that. Why? Because it's not required. But just शो ऑफ के लिए कुछ भी करना बंद कर दीजिए, सबसे पहली बात। ये चाहे कोई भी है, यंग है चाहे मिडिल एज है चाहे ओल्ड एज, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को मैंने देखा है शादियों में कर्जा ले लेके पता नहीं क्या क्या करते। डोंट गेट इनटू दैट स्टेटस। स्टेट, डोंट गेट इनटू दैट। कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी दिखा देंगे ना, चार लोग आपके लिए खराब बोलने ही वाले। दुनिया का काम है बोलना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें उसमें नहीं पड़ना। मेरे को क्या जरूरत है? सेल्फ सेंटर्ड बनिए इसमें। इसमें अपने आप को, बजाय इसके कि 1 लाख रुपए आप उसमें डालें, 1 लाख रुपए अपनी एजुकेशन में डालें। यस। कैसे एजुकेशन में? लर्न न्यू थिंग। जैसे मान लीजिए मैं मेडिकल, मैं आपको बताऊं, इफ आई 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 अभी भी शायद मैं डिग्री अपना गिनाने शुरू करूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। यस, आई एम एमबीबीएस। यस, आफ्टर दैट I did my MSc in value education spirituality. Then I got MBA in self management and crisis management. Getting my point? Then spiritually and counseling and spiritual health, I am an MSc that, and values in health care MSc. Then I did LLB. Getting my point? And now I am doing a research analyst and an NISM 15 exam, and most probably next month I'll be giving that exam also. Yes, research analyst. We research companies fundamentals, companies financials, and then we publish a report. On basis of that people invest. So this is what we have to look forward. आज के समय में भी हर साल में कुछ ना कुछ नए सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ये अगर आप यंग जनरेशन में कर देंगे ना, यंग एज में, तो मैं आपको बता दूं आपका आने वाला समय इतना इतना अबंडेंट होने वाला है, आप सोच नहीं सकते। यस, बट शो ऑफ उस समय मत करिए, मत करिए। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक मेरे पास सेकंड हैंड लूना थी। मेरे साथ वाले बाइक में घूमते थे। अब लोग कहते थे तुम्हारे पास नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कह दीजिए, आई वाज नॉट इनटू दैट जोन ऑफ शोइंग ऑफ, बिकॉज था ही नहीं, क्या दिखाते थे। बट बट आई टेल यू, if you upgrade yourself, get into that zone of working on self, आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, इतना वर्क कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ इतना अर्न कर सकते हैं। देयर सो मच ऑफ पोटेंशियल टुडे, आज के समय पर इतनी सारी चीजें हैं। देयर सो मेनी यंग गाइज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क एंड दे आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। गेटिंग माय पॉइंट? बट उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बट ये नहीं कि ओवरनाइट में जादू आ जाए छप्पड़ फाड़ के, कुछ नहीं होता। और मैं आपको बता दूं,
जितने लोगों को छप्पड़ फाड़ के मिलता है ना, अगर ऐसे किसी को मिलता है, लॉटरी भी लग गई, वो सस्टेन नहीं करता चाहता। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। यस, चाहते हैं एग्जाम्पल? बहुत सारे लोग अभी एक वो एक सिंगर कहीं से, हिमेश रेशमिया सिंगर को लेके आए थे अपने साथ। ओवरनाइट, एक कच्चा बादाम वाला सिंगर, ओवरनाइट वो हो गए, बट चार पैसे आए, बट ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज दोज थिंग्स। मैनेज गेटिंग माई मैनेज। पॉइंट? अब यस। मेरे को मिल भी जाएगा। मैं एक स्टोरी और देता हूँ। एक बच्चा पेरेंट से, पापा से बोल रहा है, पापा आई वांट आइसक्रीम। इस पापा उसको आइसक्रीम दिला देते। यस। अब आइसक्रीम लेता है, लेते टाइम वो आइसक्रीम उसके हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है। यस। अब कहता पापा मैं क्या करूं, गिर गई, अब मेरे को एक और चाहिए। चलो कहते चलो ठीक है, एक और दिला दे। कोई बात नहीं, गिर गई तो गिर गई। अब जब लेने लगता है सेकंड आइसक्रीम, अब वो कह रहा है पापा नो, वो छोटी वाली नहीं, मेरे को बड़ा जंबो वाला कोन चाहिए। क्या लगता है पापा दिलाएंगे उसको? नो। व्हाई? why he was not able to manage that small amount of ice cream, how will he be able to manage the bigger cone? Getting my point? इसलिए मैंने कहा, कड़की में अगर आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सुना पहले भी कि अगर खराब टाइम है ना, आप ऊपर नीचे टाइम होता रहता है, सबके साथ होता है। यस। उस समय आप अपनी रिक्वायरमेंट कम कर दीजिए, रिक्वायरमेंट कम कर दीजिए, बट इन्वेस्टमेंट और गिव बैक मीन्स डोनेशन कम मत कीजिएगा। आपका अच्छा समय जल्दी आ जाए, मान के चलिए, मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ। इस रिक्वायरमेंट कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक लीटर चाय पी सकता हूँ एट अ टाइम, आई एम दैट फॉन्ड ऑफ टी। बट वन once upon a time I stopped drinking tea just to save money. Can you imagine that? I have crossed through those phases also, because the vision was clear कि आगे आने वाले समय सब ठीक होगा। सो यंग टाइम पे अगर उस एज में मैं अपने आप को कर दूं, ऐसा ऐसा बना दूं कि आगे आने वाला समय ठीक रहे। अब चॉइस आपकी है कि उस समय आप एंजॉय करना चाहते हैं यंग एज में, कि लाइफ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, चॉइस इज विद यू। एंड एक रिसर्च हुई है इस पर कि जितने लोग भी ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं, मीन्स अगर मान लीजिए, रिसर्च हुई इस पे कि आपको एक चॉकलेट दी गई, आपके पास चॉइस है, आप तुरंत में खाते हैं या थोड़ी देर रुक के खाते हैं। अगर थोड़ी देर रुक के खाएंगे तो आपको एक चॉकलेट और मिलेगी। इस तो ऐसा देखा गया, जिनके पास ये रुकने की क्षमता नहीं थी, वो बच्चों ने खा लिया जल्दी, हमें मिले नहीं मिले हमने अभी खाना है, उन्होंने खा लिया। वो लाइफ टाइम वो पैटर्न को कैरी करते रहे और लाइफ टाइम परेशान रहे। पर जिन्होंने अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले किया ना, कोई बात नहीं, रुक के खाएंगे, एक और मिल जाएगी हमारे को, जिन्होंने इस हैबिट को प्रैक्टिस किया, तो उनको लाइफ टाइम दे वर एबल टू मैनेज देयर थिंग्स प्रॉपरली। yes, this is the way we can train ourselves, हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और हम अपने जीवन में भरपूरता संपन्नता ला सकते बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि किस प्रकार से हमें मैनेज करना आना चाहिए और मेटेरियलिस्टिक लाइफ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हार्मनी विद द स्टडी एंड करियर चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे अपने शौक भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज में एक अलाइनमेंट का होना बहुत जरूरी हैं। है। अगर दैट्स व्हाट। यस, अगर अलाइनमेंट नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। और ना केवल बच्चों की बात मैं करूं, मैं महिलाओं की बात करती हूँ, जो दोज हु आर लाइक एल्डरली वुमेन्स। मैंने उनके बारे में सुना है कि किटी पार्टी में जाती हैं, अगर एक सेट पहना हुआ है किटी पार्टी में, दूसरा सेट दूसरे टाइम पे वो सेट नहीं पहनना चाहती, दूसरा सेट पहनना चाहती। एंड नाउ मनी। So a role model, like a role model are like a me, and I want every time to be different. Look wise different, the ornament was different, everything they're different. And the children they are like a copying me. और वो देख रहे हैं मुझे। So how they are going to learn from us. So ये भी एक लर्निंग पैटर्न भी आज जो है वो भी सीखते हैं आज के पेरेंट्स से। और वो मुझे कहाँ से कहाँ किस ओर ले जाते हैं, और बाद में वो आकर के हमारे सामने ही प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो पैसा कहीं सुकून भी देता है तो कहीं शांति भी देता है, तो पैसा कभी कभी अशांति भी देता है। इस तरह से डॉक्टर साहब, जब पैसा बहुत होता है पेरेंट्स के पास,
तो हम क्या करते हैं कि बिना डिमांड के, बिना उसकी अपेक्षाओं के, बिना उसकी चाहत के, फिर भी हम चीजें प्रोवाइड कर जाते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। और जब प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं समझता, बच्चा उसकी वैल्यू नहीं समझता। और फिर कैसे उसकी पर्सनालिटी जिस ट्रैक में चल रही होती है उस ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाना शुरू कर देती है। और वो ये जो ट्रैक कहाँ से कहाँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ओर ले जाता है, और कहाँ से कहाँ मिसयूज, मनी को मिसयूज करने की स्थिति पैदा हो जाती है, वहाँ एडिक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं इस तरह का ग्रुप भी ग्रुप में आने लगते हैं जहाँ पर उनका स्टडी है, करियर है, वो सारा चीजें एक तरह से उनका फिनिश होने लगता है। तो हम आपके अन्य क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहिए। हाउ लाइक व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप चैलेंजेस एंड ब्लॉक इन अबेंडेंस, एंड हाउ कैन समवन बिगिन हीलिंग देयर रिलेशनशिप्स। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन समवन बिगिन हीलिंग देयर रिलेशनशिप while वर्किंग ऑन फाइनेंशियल ग्रोथ। देखिए, शुरुआत जहां से मैंने की थी वो बेसिक्स हमेशा सेम रहने वाली। आप इस चीज को समझ लीजिए, जैसे मैंने हैबिट बनाई, यस, दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर, दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर। आपके पास धन कम है, धन कम ज्यादा है, वो दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। इट वोंट अफेक्ट अ लॉट, बट yes, what affects is that is how you handle those things in your life. That is very important. Getting my point? तो अब जो बात आ रही है कि रिलेशनशिप के साथ वर्क करते हुए, तो एक चीज और हमारे को दिमाग में यह डालनी पड़ेगी कि दिस इज नॉट द एवरीथिंग इन योर। नाउ आई एम शिफ्टिंग माय गियर्स टू द नेक्स्ट लेवल, कि हम धन को ही सब कुछ मान के ना करें, तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाने है। हम मनी सेंटर्ड ना हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? आई हैव टू अर्न मनी, यस एब्सोल्युटली, आई एम नॉट अगेंस्ट मटेरियलिज्म, नॉट एट ऑल। आप एंजॉय कीजिए, आपके पास धन है, यू विल सर्टनली, आप घूमिए फिरिए, खाइए पिए, जो आपके मन में करिए, यस। मन में इन द सेंस, with the sense of responsibility towards your family, towards everything, yes. But I tell you, this is not a center of attraction. Center of attraction is my abundance, मेरी भरपूरता। अब देखिए, धन है तो भी मैं आनंद में हूं, धन नहीं है तो भी मैं आनंद में। दैट दिस इज इज मोर अबंडेंस, इम्पोर्टेंट, या। दैट इज अबंडेंस। देखिए, अभी बच्चे लोगों की मूवी भी बनी पिछले समय पे, कि एक बच्चे को अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो नहीं आए। तब क्या है, पैसा आ रहा है, देखिए फैमिली में ऐसा होता है, पैसा आ रहा है, बहुत खुश है, सब अच्छे से हैं, सब अच्छा है, अबंडेंस से भरपूरता है। पैसा नहीं आया, कुछ लॉस हो गया, तो देन व्हाट विल यू डू यू हैव दैट कैपेसिटी टू फेस दैट पर्टिकुलर चैलेंज इन योर लाइफ? यस, कि आप सक्सेस और फेलियर दोनों को एक्सेप्ट कर सकें, और जिस समय जो चीज आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल, दैट इज अबंडेंस। what to do, when to do, how to do, that ability is abundance. Getting my point? भाई, पैसा है तब तो हर एक कोई अच्छा कर लेगा, धन नहीं है तब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर पा रहे हैं, तब आप अपने पूरे कारोबार पर पूरा दिमाग लगा के और अपनी मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हो। दैट इज अबंडेंस। ये हमें फोकस करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप, धन रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप धन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर माय रिलेशनशिप्स आर डिस्टर्ब, आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन माय करियर आल्सो, यस। सो हर चीज गोज हैंड इन हैंड। हम ये नहीं कह सकते ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, नो। बट सब चीजों के लिए ये भरपूरता चाहिए। मैंने पहले शुरुआत वहां से ही की थी। स्पेशली यहां से मैं भरपूर हूं ना, फिर मैं अबंडेंस, भरपूरता, रिलेशनशिप में भी, धन में भी, हेल्थ में भी। अब मान लीजिए मैं यहां सोच रहा हूं मेरी तो किस्मत ही खराब है, ठीक है। अब अगर अच्छा रिलेटिव भी मेरा कोई होगा ना, और छोड़िए, मैं एक चीज और एग्जांपल देता हूं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में आपने राशिफल पढ़ लिया, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मैं विश्वास नहीं करता, आई एम सॉरी टू से दैट, कि किसी को विश्वास होता हो तो आपकी चॉइस है।
अब उसमें क्या लिखा है, आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, पर आज कोई एक आपका अपना है रिलेटिव जो आपका कुछ ना कुछ फायदा उठा ले। अब क्या होगा, अब आप दिन भर यू कीप ऑन सर्चिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन जो आपको नुकसान पहुंचाने, अब नहीं भी होगा ना, यू विल सेंड दैट नेगेटिव एनर्जी, ये बंदा तो नहीं है, ये बंदा तो नहीं है। यस, तो दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज आई एम स्टक हियर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां सबके लिए आज से अब एक और काम कर दो कि हम सब पिता परमात्मा की संतान है। ये याद अगर मैं रखूंगा ना, गा रहे हैं ना सब, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जब ये याद है हम सब उस पिता परमात्मा की संतानें हैं, तो सब आपस में हम भाई भाई हैं, ये याद रहेगा ना, तो किसी के प्रति कोई नेगेटिव भावनाएं नहीं आएंगी, सबके प्रति अच्छी भावनाएं रहेंगी, और हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अभी मैंने 2 दिन पहले ही, एक्चुअल में मेरी संडे को एक शिव मंदिर में गया, बहुत सुंदर, पहले कभी मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं वहां बैठा, बैठ के देख रहा हूँ, भक्त लोग आ रहे हैं, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई ऐसे ऐसे उसको, शिवलिंग को, अपनी जो जो भावनाएं जिसकी, मैं देख रहा था कि आप सोचिए कमाल की स्थिति है पिता परमात्मा की, भगवान शिव की, कि सबको आनंद दे रहे हो। कोई माला पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है भीड़ में, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है। मान लीजिए मेरे पास है, मेरे ऊपर ऐसा हो रहा हो, कोई माला पहना रहा है, अब नेताएं आते हैं, कोई सेलिब्रिटी आती है, माला भी नहीं पहन पाते वो प्रॉपरली, क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अबंडेंस। ही द सुप्रीम फादर हैज, वो कोई भी आ रहा है सबको भरपूर कर रहा है। अगर मैं मान लीजिए ये याद रखूं कि मैं उसकी संतान हूं, तो सब काम इजीली हो सकते हैं, कोई कमी कमजोरी नहीं रहेगी, सबके लिए अच्छी भावनाएं, गुड विशेष फॉर एवरीवन, कि जो हम देने वाले हैं वो मिलने वाला है। धन तो अब पीछे पीछे आएगा, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। जितना आप वैल्यू ऐड करोगे आपको रिटर्न मिलने वाला है। यस, एज अ कोच, इफ आई एम हेल्पिंग मैक्सिमम पीपल अराउंड, आई विल सर्टनली जनरेट मनी, मोर एंड मोर मनी, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप आप एज अ काउंसलर, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप जो जो वर्क कर रहे हैं, इफ यू आर putting 100% of your energy into it, you will certainly generate more money. ऐसी सिमिलर डॉक्टर है, लॉयर है, कोई भी है, सो इट्स अ बाय प्रोडक्ट। हमें इसके पीछे नहीं भागना है, बट यस इट्स एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। यस, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इसके साथ रिलेशनशिप अच्छी करके दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा करना है, ताकि धन भी हो, रिलेशनशिप भी हो, हेल्थ भी हो, करियर भी हो, सब ठीक हो। दिस इज अवर फोकस इन स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम, कि हम स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करें और सब चीजें ठीक कर पाए, सब सब वेलनेस हमारे पास हो, हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप, बहुत और ये अच्छी पिता बात आपने। परमात्मा जी, सिखा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपकी बहुत अच्छी बात थी कि सब कुछ, हर व्यक्ति सब कुछ चाहता है और सब यस, कुछ नहीं पा पाता है। सब कुछ ना पा पाने पर जब तक कि वो स्पिरिचुअली अपने आप को एबेंडेंस में नहीं ले जाने वाला है तब तक वो सब कुछ पा करके भी खुश नहीं रहने वाला है। सब कुछ पा करके भी पैसों की कमी महसूस करने वाला है। सब कुछ पा करके भी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने वाला है। लेकिन कहीं यहाँ माइंड सेट, सारी बात आ जाती है, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू फील। And if you think positively and you are going to feel positive, and when you are going to feel positive and you are going to take your action positively, तो ये तीनों ही चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। और तीनों ही जब चीजें बात मिल जाती हैं एक व्यक्ति में, तो अलाइनमेंट, हर चीज का अलाइनमेंट हो जाता है। और इस प्रकार से लाइफ बहुत स्मूथ जाती है और बहुत अच्छी जाती है। और जब अच्छी जाती है तो फिर सब कुछ उसको अच्छा लगता है और जीवन जीना आसान हो जाता है। तो लास्ट में जाने से पहले हम चाहेंगे श्रोतागण कि अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर हम सभी से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कि आज के पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब ने जो बातें आपको बताई, आपको कैसी लगी और क्या आप कोई क्वेश्चंस रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सबसे पहले हम निदा को, हेमा हमारे पास बिगनिंग से शुरू हमारे साथ जुड़ी हुई है। और इफ निदा इज देयर, प्रतिभा शुक्ला जी इज देयर, so I will like request you if you can unmute yourself, you can come on video if you are feel comfortable. So please come on the video and unmute yourself and share something about your experiences.
आप लोगों में से कोई भी? रिता, मोटोरोला, दिव्या, कविता शर्मा, प्रतिभा, एंड हाउ मेनी आर देयर? सो कोई भी? हाँ, कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ पूछना नहीं चाहते? तो मुझे लगता है सारे ही सारे सॉरी। क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। और ये बात बहुत सही है कि पैसा जिसके पास आता है होता है, वो पावर पावर महसूस करता है, अपनी पोजीशन महसूस करता है। और पावर और पोजीशन होने की वजह से उसमें कॉन्फिडेंस जरूर आता है। इंडिपेंडेंट जब फीलिंग आती है तो नेचुरली उसकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छी होती है। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को, कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ता जाता है। और जहाँ पैसों की कमी होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जैसा कि हमने अभी आज के पॉडकास्ट में सुना भी। लेकिन एक एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ आपको बताना चाहूंगी कि एक के पास सारी क्वालिटीज हैं, जैसे कहेंगे परफेक्शनिज्म 99%, लेकिन उसकी इनकम उसकी इतनी नहीं है जितनी एक इनकम उसकी फैमिली में और लोगों की है, तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो हैंडसम सैलरी उसकी अपनी पास नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद एक हमेशा एक बात खटकती है कि आज सबकी वैल्यू है, सबकी इज्जत है, लेकिन बिकॉज मेरे पास पैसा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं मेरी वैल्यू नहीं है। तो ऑफ कोर्स वैल्यू पाने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है, अर्न करने की भी आवश्यकता होती है, और उसको यूज और मिसयूज किस प्रकार से हमने आज के पॉडकास्ट में सीखा उसकी भी आवश्यकता होती है। तो आप सभी ने इस बात को जाना और समझा, और इस पॉडकास्ट से जरूर आप लाभ उठाएंगे, पिग्गी बैंक को यूज करेंगे। ग्रेटिट्यूड, आज के इस पॉडकास्ट में आपने जरूर सुना कि डॉक्टर साहब ने किस प्रकार से आते हुए मनी को हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, कहते हैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब कुछ दिया है। हमने लोगों को कहते भी सुना है, और शायद आप लोग करते भी होंगे। लेकिन जब पैसा जा रहा होता है तो कुछ लोगों को बड़ी खुशी होती है जब पैसा खर्च करते हैं। कुछ लोगों को पैसा खर्च करने में, कहते हैं, जान निकल जाती है, जबकि उनके पास बहुत धन होता है। तो वो जो जिनकी जान निकल रही है, तो उसको फ्लो ऑफ एनर्जी समझ सकते हैं। और जब फ्लो ऑफ एनर्जी अगर जाने देंगे तो वो वापस आएगी। जैसे समुद्र की लहरें जब जाती हैं तो वापस आती हैं, और आती हैं तो वापस जाती हैं। तो आना और जाना, ये मनी का अपना एक नेचर है। और जब जो नेचर है, नेचर के विपरीत जो कार्य करता है, तो उसका पैसा, कहते हैं, अच्छे कार्य में ना जा करके कहीं ना कहीं ऐसे कार्य में लग जाता है जहां पे आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो जो भी ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनको हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि पैसा अगर खर्च करते हैं तो खुशी खुशी उनको खर्च करना है, और जरूर से जरूर ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है कि आपको धन्यवाद, आप हमारे पास आए, आपने इतने समय तक मेरा साथ दिया, अब हम आपको खर्च कर रहे हैं, दूसरों के पास भेज रहे हैं। और जो धन दूसरों के पास जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स के पास, शॉपकीपर्स के पास, आपके किसी भी एरिया में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, उनको भी इस धन से सुख और शांति प्राप्त हो। कभी कभी एक ऐसा धन आ जाता है जिस धन से आपकी सुख शांति गायब हो जाती है। तो कहते हैं ये धन कौन सा आ गया हमारे पास, कि जब से ये धन आया है तब से हमारे सुख और चैन हो गए हैं। तो आप जब इस ग्रेटिट्यूड के साथ आप पैसे को खर्च करते हैं, तो आपको खुशी भी मिलती है और कंटेनमेंट, शांति भी मिलती है। जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो कंडेम करते हैं, जो गैसलाइटिंग करते हैं अपने रिलेशनशिप में, उन सारी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को ब्लेस्ड कर सकते हैं। और कहते हैं, जब हम एबंडेंस की बात करते हैं तो हमारे साथ, कहते हैं, एक सुप्रीम पावर की एनर्जी का होना हमारे साथ बहुत जरूरी होता है। और उस एनर्जी के साथ हम जिंदगी को जब जीते हैं, तो हमारे एबंडेंस माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट हमारे जीवन में आता है, और हम अपनी लाइफ को खुशनुमा, शांतिनुमा हम जी पाते हैं। तो डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे पॉडकास्ट में आए, और आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिसने भी हमारे इस पॉडकास्ट को सुना। और केवल आज ही नहीं, बल्कि आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें नहीं खोली हैं, क्योंकि हम बात करना चाह रहे थे बहुत सारी स्कीम्स में, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट में जहां पर उनकी एक्सपर्टीज है। वो बहुत सारी चीजों को जानते हैं कि कौन पैसा कहाँ लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, कैसे बेहतर इन्वेस्ट करके कैसे लाया जा सकता है।
उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा नहीं की। आज हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमने अपने जीवन में एक्सपीरियंसेस में, थेरेपी के दौरान, पेशेंट्स को देखने के दौरान हमने पाई हैं, मतलब थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं दे पाई हूँ। तो उसी एग्जाम्पल देने के साथ साथ आज के हम इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पे ही समाप्त करना चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब कहाँ, थैंक यू। डॉक्टर साहब आप कहाँ या गए? आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, हमारे शुक्रिया। सारे श्रोतागणों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी एनर्जी दी। हम आपकी एनर्जी से आज आपके सामने इसको सक्सेसफुली, हम इसको आज इस प्रोग्राम को, इस पॉडकास्ट को कर पाए। और आगे फिर हम आते रहेंगे और आपको इसी प्रकार से कुछ ना कुछ टिप्स देते रहेंगे कि आप कभी भी महसूस ना करें कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। पैसा हो या ना हो, कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंट रहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट आपके मन के अंदर रहता है, आप बिना पैसे के विजुलाइज करते हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, जो चला भी गया फिर पैसा मेरे पास आ रहा है, और उसको वेलकम करते हैं उस पैसे को, तो पैसा मैनिफेस्ट होने लगता है। इसी प्रकार जाते हुए रिश्ते को, रिश्ता रिश्ता अगर चला भी गया है तो भी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बार बार एफर्मेशन देना है कि रिलेशनशिप वापस आ रहा है, रिलेशनशिप वापस आ रहा है, रिलेशनशिप वापस आ रहा है। और उस रिलेशनशिप को वापस करने में उस एनर्जी, जो सुप्रीम एनर्जी है, वो मेरी मदद कर रही है, मेरी मदद कर रही है। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर अपनी जिंदगी को जीने की राह चुनते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सफलता मिलती ही मिलती है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस थैंक यू। पॉडकास्ट में आए। और या आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अंजलि गुप्ता, बीके डॉक्टर अंजलि गुप्ता के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और हम इसमें जरूर से जरूर इसको टेलीकास्ट करेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी प्रकार हम आते रहेंगे, आप लोगों से रूबरू करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।